Welcome once again in our YouTube channel Shiketeshwar and Childcare Academy. In our previous session we have discussed a little bit about chapter number 8, the best Christmas present in the world of class 8, and chapter number 1. Today we are going to start the other section of this chapter. Let's see. Before going forward, let's have a quick glance at the previous reading that we have made in our last session. Letter was written for Coney by Jim. Okay. In our previous session and the session before that, we knew that a person, the author, the writer of this chapter, he found a rolled up box in a junk shop where the junks are stored, and he took that particular rolled up box and tried to make it perfect, tried to make it better for useful. In one of the drawers he found a tin box. In a secret drawer he found a tin box. A note was attached on it for a letter for someone who is Coney. He unfolded the letter and read the letter of that. After that, letter was written for Coney by Jim. The letter which was found by author was written by Jim to Coney. Jim was an army person who was working for England's army. He was a soldier, officer. Jim described the incident of Christmas morning. Yeah. In the letter, Jim described about the incident of Christmas morning. In this letter, Jim has wrote an incident which happened in the battlefield on the Christmas morning. Peace flag were raised by Fritz. Okay, what he described? He described that the two armies, German army and English army, they were on fights. And in the morning, when they were in their trenches, both sides, the Fritz is common name for German soldiers. And one of the German soldier officer, he stood up and raised a flag, white flag for peace. And they shouted, "Merry Christmas, Tommy." Tommy is a name for English soldiers, a common name for English soldiers. And from other side, from English soldiers, they again with them to Fritz, same to you. Then one of the officer stood up with the flag and a bottle of schnapps, a drink made by grape in German. Then they started moving towards no man's land without any rifle. From English army, one of the soldiers tell what we are waiting for, and they went to meet. They wished each other Christmas. They sat over there, and what they did, both the armies meet in no man's land. No man's land पे दोनों armies मिलती है, दोनों armies घुलती मिलती है, एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देती है, एक दूसरे को क्रिसमस की विशेस देती है, और साथ में बहुत सारी बातें करती हैं, घुलते हैं, वो सॉसेज खाते हैं, along with their schnapps, वो शेयर करते हैं, they mingle with each other like a party. They celebrated Christmas together by playing football match. Okay. Now what happened in no man's land? Both the armies took out, some of the soldiers took out the football and they started playing. There was two teams, a Fritz team and a Tommy's team. Tommy yani English army and Fritz yani German army. There was at both the teams and they were playing a friendly football match. Hans Wolff suggested that a football match should resolve the war. Hans Wolff was one of the person from Fritz, one of the person of German officer. He was German leader. Okay, he came and he and Jim, they both were sitting together and having some sausage and glasses of what we call rum. And together, while watching the football match, Hans Wolff suggested that these wars should be decided with a football match. A football match should happen. एक football match होना चाहिए जिससे क्या होता है कि ये जो war है इसको resolve किया जा सके.
ये युद्ध जो है इसकी समाप्ति हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर एक फुटबॉल मैच की वजह से वॉर रिजॉल्व हो जाता है तो कोई भी सोल्जर नहीं मरेगा, कोई बच्चा ऑर्फन नहीं होगा, कोई पत्नी विडो नहीं होगी और कोई माँ बाप लासहारा नहीं होंगे, बेसहारा नहीं होंगे, अपने यतीम बच्चों के लिए नहीं रहेंगे। तो ये जो तरीका है ये होना चाहिए, ऐसा वो सजेस्ट करता है। कौन? हैंस वुल्फ, जर्मन आर्मी का ऑफिसर। अब इसके आगे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि इस बात के ऊपर जो टॉमी है, टॉमी यानी यस टॉमी यानी जिम मैकफर्सन ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश आर्मी, इंग्लिश आर्मी का जो ऑफिसर है उसका क्या कहना है, व्हाट डज ही थिंक्स अबाउट दिस सजेशन। लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस reading session, let's have a look on some of the difficult words that are in this chapter. Marzipan, a sweet covering on a cake made by from sugar, eggs and almonds. एक sweet covering है, एक मीठी covering होती है जो egg से, sugar से और almonds बादामों से बनी हुई होती है जो केक के ऊपर लगाई जाती है। Dug out, dug out, dug out. Shelter for soldiers made by digging a hole in the ground and after covering it. होल खोद के जमीन के ऊपर ग्राउंड में एक बड़ा सा होल किया जाता है, उसको कवर किया जाता है, वो शेल्टर बनाए जाते हैं युद्ध के दौरान, बैटल्स के दौरान, फाइट्स के दौरान, वॉर्स के दौरान सोल्जर्स के लिए, उसे अंग्रेजी डग आउट कहते हैं। That is burned out, destroyed by fire, जो आग से खराब हुआ हो, burned out। boarded up, covered with wooden boards, boarded up मतलब covered with wooden boards, जो wooden boards से covered हो। muddle headed, muddle headed यानी confused, to what confused, confused होना is muddle headed। I hope you have got this difficult words and you remember these things। let's start our chapter, start with the session and just make it out what is chapter saying to us। We'll start from chapter number, page number 12, last paragraph। I would prefer cricket, I told him। जब हैंसफोर्ड ने उससे ये बोला कि एक फुटबॉल मैच होना चाहिए रिजॉल्व करने के लिए वॉर, तो जो टॉमी है सामने से, या जो हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश सोल्जर जो है, जो जिम मैकफर्सन है, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं प्रेफर करूंगा क्रिकेट। Then we Tommies would be sure of winning, जिसमें हम Tommies जो है, Tommies यानी इंग्लिश सोल्जर्स जो है डेफिनेटली जीतेंगे। Probably we laughed at that, हम दोनों हंसने लगे, कौन कौन? जिम और हैंसफोर्ड। And together we watched the game, और दोनों बैठे बैठे वहाँ पर गेम को देख रहे थे। Sad to say, दुख के साथ कहना पड़ता है, कौन? Fritz won 2 goals to 1। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो फ्रिट्ज है, जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो फुटबॉल मैच जीत गए थे उस दिन। They won the football match, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। But Hans Wolf ने बहुत ही जनरसली, बहुत ही तहजीब के साथ ही कहा कि our goal was wider than theirs, कि हमारा गोल जो है वो वाइडर था, चौड़ा था, लंबा ज़्यादा था इंग्लिश सोल्जर्स के बकायदे। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, तो ये क्वाइट फेयर यानी एक फेयर मैच नहीं था, सिर्फ आनंद प्राप्ति के लिए था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, समय आ गया था वापस हम सभी के लिए, और बहुत जल्द समय आ गया था। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, गेम फिनिश हो चुका था। द शर्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो शर्नैप्स है, जो ड्रिंक्स थे जर्मन, जो रम थी, जो सॉसेजेस थी खाने के लिए, they all ran out। run out का मतलब होता है खत्म होना, फिनिश हो जाना। run out is a phrasal verb and we knew it was all over, और हम लोग जानते थे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। I wished Hans Wolf and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home। मैंने हैंस वुल्फ से हाथ मिलाया और उससे कहा कि जल्द तुम अपने परिवार से मिलोगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। जल्द ये युद्ध, ये मैदान के जो वॉर है, ये खत्म हो जाएगा और हम अपने परिवार के पास वापस लौट पाएंगे
और उन्हें देख पाएंगे और मिल पाएंगे। I think that is what every soldier wants on both the sides. Hainsworth said. Hainsworth ने कहा मुझे भी यही लगता है, और दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं, दोनों ही सोल्जर्स की यही इच्छा, यही उम्मीद, यही होप वो लिए बैठे हैं। टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। I shall never forget this moment, nor you. मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा, और शायद तुम भी कभी ना भूल पाओ। He saluted and walked away from me slowly and उसने मुझे सैल्यूट किया और स्लोली और अनविलिंगली, बिना चाहत के, मजबूरी में उसे जाना पड़ा, तो वापस धीरे धीरे लौट रहा था। I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. मुझे ऐसा लगा कि वो शायद एक बार वापस मुड़े और वेव करेगा। वेव करना मतलब ऐसे हाथ को हिलाएगा और फिर उन्हीं ग्रे कोट्स के अंदर शामिल हो जाएगा वापस, जो 100 सोल्जर्स, 1000 सोल्जर्स जो अपने इसमें हैं, ट्रेंचेस में जा रहे हैं। That night back in our dugouts, उसी रात में हमारे डगआउट्स के अंदर, डगआउट यानी जो शेल्टर है वहाँ पर, we heard them singing a carol, हमने उन्हें एक कैरल गाते हुए सुना, एक सॉन्ग, and singing it quite beautifully, और वो बहुत ही प्यारे तरीके से उस कैरल को गा रहे थे। एक प्रेयर कह सकते हो आप, कैरल्स जो होती है, सॉन्ग हो सकता है, उसे वो लोग गा रहे थे। It was still night, silent night, still night, silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched. और हमारे जो बॉयज हैं, टॉमीज जो हैं, उन लोगों ने भी उन्हें कोरस दिया, wild shepherds watched, इस तरीके का गाते। We exchanged carols for a while and then we all fell silent. हमने कुछ समय के लिए कैरल्स जो है एक्सचेंज किए, हमने गाया, कभी उन्होंने गाया, कभी उन्होंने गाया, कभी हमने गाया। There was an exchange of carols. और फिर हम लोग क्या हो गए, सब शांत हो गए। We had a time of peace and goodwill. We had दोनों यहाँ पर जो वर्ब है वो करेक्ट है। एक तो है आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेड पास्ट का दिखाने के लिए, और दूसरी जो हेड है वो आपकी मेन वर्ब के रूप में आ रही है फॉर्म के हिसाब से। A time of peace and goodwill. A time will treasure us long as I live. ये समय जो था ये हमारे लिए जीवन भर याद रहेगा। जितने समय तक मैं जिंदगी जीऊँगा उतने समय तक ये समय मुझे याद रहेगा, इस पल को भूल नहीं पाए। Dearest Connie, by Christmas time next year, dearest Connie, प्यारी कोनी, अगले महीने, अगले साल क्रिसमस के समय तक, this war will be nothing but a distant and a terrible memory. ये जो वॉर है, युद्ध है, ये कुछ नहीं रहेगा, ये एक डिस्टेंस, दूर का, और एक टेरिबल, एक बहुत ही भयानक मेमोरी, एक याद की तरह रहेगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace. मैं जानता हूँ कि आज जो भी हुआ है हमारे बीच में, जो भी बात हुई है, उस चीज़ को देखते हुए दोनों आर्मीज के अंदर कितने लंबे समय से पीस, शांति के लिए व्यतीत कर रहे थे। We shall be together soon, again soon. हम लोग जल्द ही एक दूसरे के साथ होंगे। I am sure of it. मैं इस चीज़ का यकीन रखता हूँ। Your loving Jim, तुम्हारा प्यारा जिम। तो आपने देखा किस तरीके से दोनों टीम्स जो मैच जो हुआ, उस मैच का अंदर कौन एक जीता एक हारा, और साथ में वापस वो लोग लौट गए। अब दोनों ही आर्मीज क्या नहीं चाहती थी, युद्ध नहीं चाहती थी। दोनों ही आर्मीज चाहती थी कि जल्द से जल्द ये मैटर जो है, ये वॉर जो है रिजॉल्व हो जाए और दोनों अपने अपने घर जा सकें, दोनों आर्मीज के सोल्जर्स अपने परिवार वालों से मिल सकें। ये जो खत है, ये जिम मैकफर्सन ने, शायद मे बी कौन ही उसकी वाइफ हो या कौन है वो आगे रिवील होगा तो पता लगेगा, उसको लिखा। उसको इसलिए लिखा था कि वो उस पल, उस याद को बताना चाहता था, जो उसके साथ उस दिन अच्छा हुआ, उस चीज़ को शेयर करना चाहता था, और शेयर करने के साथ साथ वो ये दिखाना चाह रहा था कि कितना अच्छा लगा उसे, कितना अच्छा वो फील कर रहा था उस दिन, पर्टिकुलर दैट डे व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड एंड ऑन द क्रिसमस। इसके साथ ये कहते हैं कि अगर ये वॉर खत्म नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस के समय तक ये जो वॉर है, ये सिर्फ एक भयानक याद बन के रह जाए, एक डिस्टेंट एंड टेरिबल मोमेंट, पल, और कुछ नहीं हो, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। चलिए कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, एक बार डिस्कस करते हैं।
Who had written the letter to whom and when? किसने किसको लेटर लिखा और कब लिखा? तीनों चीजों का जवाब आपको इसी पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा, आपको देखना है। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? लेटर क्यों लिखा गया था और क्या wonderful thing थी जो हुई थी? What job did Hansford and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब जिम मैकपर्सन और हैंसफोर्ड दो सोल्जर्स नहीं थे तो उनकी जॉब्स क्या थी वो बतानी है। Had Hansford ever been to Dorset? क्या हैंसफोर्ड जो है कभी डॉर्सेट गए? Why did he say he knew it? क्यों कहा उसने कि उसने वो उसको जानता है वहाँ पे? Do you think Jim McPherson came back from the war? क्या आपको लगता है कि जिम मैकपर्सन जो है वॉर से वापस लौटा था? How do you know this? आप तो ये कैसे जानते हैं? Let's start with the part third. इन क्वेश्चंस के जवाब बहुत इजी हैं और ये जवाब आपके बुक के इस पोर्शन के अंदर ही है, सेकंड पोर्शन के अंदर। आपको ढूंढने हैं, लिखने हैं and then send us the PDF. Let's move on forward and read out. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने उस लेटर को वापस, जो ऑथर है वो कह रहा है, मैंने लेटर को वापस अच्छे तरीके से फोल्ड किया और उसको वापस उस एनवेलप में डाल दिया। I kept awake all night. पूरी रात में क्या रहा? जगा हुआ रहा। By morning I knew what I had to do. और मॉर्निंग से मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। I drove into Bradford. मैं ब्रेडफोर्ड की तरफ गया। Just a few miles away, कुछ ही मील तक दूरी पर था ब्रेडफोर्ड। I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. एक बच्चा, एक लड़का जो है, मैंने उससे पूछा, वो अपने डॉग को घुमा रहा था उससे कि Cooper Beaches कहाँ पर है? हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. हाउस नंबर 12 जो था वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक burned out shell की तरह था, जल चुका था पूरा। The roof gapping, the windows boarded up. रूफ गैप हो चुकी थी, टूट चुकी थी, विंडोज जो है वो बोर्डेड अप हो चुकी थी, कंप्लीटली क्या हो चुकी थी? कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स। I knocked at the house next door and asked. मैंने उसके पड़ोस के घर में नॉक किया और पूछा if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson, कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ रहती है, whereabouts यानी कहाँ पर वो है। Oh yes, said the old man in his slippers. एक old man जो अपने स्लीपर्स के साथ है, उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। He knew her well. वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था। A lovely old lady, एक बहुत ही lovely और old lady थी। He told me. A bit muddle-headed, थोड़ी confused थी, मगर बहुत प्यारी lady थी। But at her age, she was entitled to be, wasn't she? और उस उम्र के अंदर तो वो confused हो ही सकती है, क्योंकि एक अच्छी उम्र की थी। 101 years old. Oh, the lady was 101 years old. She had been in the house when it caught fire. जब उस घर में आग लगी तो वो यही थी। No one really knew how the fire had started. कोई नहीं जानता कि ये आग कैसे स्टार्ट हुई। But it could well have been candles. लगता है कि वो शायद कैंडल्स की वजह से स्टार्ट हुई। She used candles rather than electricity. वो कैंडल्स का यूज कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी की बजाय। Because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, बहुत ज़्यादा महंगी है। The fireman had brought her just in time. Fireman ने उन्हें बहुत ही टाइम लिए उनको बाहर निकाल लिया। She was in nursing home now, he told me. उसने मुझे कहा कि वो एक नर्सिंग होम है जहाँ उनकी केयर की जाती है, वहाँ रहती है बर्लिंगटन हाउस, जो कहाँ पर है? बर्लिंगटन हाउस on the Dorchester Road, on the other side of the town. टाउन के दूसरे साइड पर डॉचेस्टर रोड है, वहीं पर। Why did the author go to Bradford? Author Bradford क्यों गया था? आप जानते हैं। How old was Mrs. McPherson now? Mrs. McPherson की उम्र क्या थी? आपको ये बतानी है। बाकी का जो पोर्शन है हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो ऑथर है वो बहुत क्यूरियस हो जाता है और उस लेटर को देने के लिए ब्रेडफोर्ड निकल पड़ता है। जब वो ब्रेडफोर्ड जाता है तो उसे पता लगता है कि घर ऑलरेडी जल चुका है, वो घर बिल्कुल ऑलरेडी जल चुका है। और जब वो घर जल चुका है तो क्या होगा वहाँ पर? बिल्कुल वो लेडी नहीं मिल पाई। तो वो नेबर से पूछता है, नेबर बताते हैं उसे
कि उसे उन्हें नर्सिंग होम है डॉर्चेस्टर रोड पे वहाँ रखा गया है और वो वहाँ जाने की शायद कोशिश करेगा या नहीं करेगा, वो देखेंगे हम अपने अगले सेक्शन में। तो आप लोगों को पता है, एक बार रीड करना है हमारे पास चैप्टर को अच्छे तरीके से। कुछ क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ पूछें। थैंक यू।